میں پاسٹر فہد اپنے تمام سائمین کو اور اردو سہارٹ چرچ کی ساری کلیسیا کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے جس نے ہماری زندگی میں عطا کیا کہ ہم سب وہاں مل کر خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف بڑھیں۔ آمین۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا، ہم نے کئی دفعہ سنا، چنانچہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں گے اور چند ایک باتوں پہ نظر ثانی کریں گے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ ہم ان باتوں پہ غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ ہاللویا۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، مطلب یسوع کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کے کھپریل میں سے اس کو کٹھولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے، یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی زندہ آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ ہاللویا جیسس۔ اے زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت، اس موقع کے لیے خداوند آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم ایک دفعہ پھر جمع ہو کر یسوع جی آپ کی حضوری میں آئیں اور آپ کے کلام کی ان عمیق باتوں پہ غور کر سکیں۔ خداوند یسوع جی، وہ تمام بیٹے بیٹیاں جو آن لائن اس میسیج کو سنتے ہیں، اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجئے اور بڑی برکت دیجئے، دلوں کی آنکھوں کو روشن کیجئے، سننے والے کان دیجئے، سمجھنے والا دل عطا کیجئے، بڑی برکت عنایت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور 5ویں چیپٹر میں 17ویں آیت سے 26ویں آیت تک ہم نے جو اس پیسج کو پڑھا، تو اگرچہ یہ پیسج ہمیں متی کی انجیل میں بھی ملے گا اور پھر مرکز کی انجیل میں بھی ملے گا، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی پیسج کو مرکز کی انجیل میں سے پڑھا اور پھر اس میں سے چند ایک باتوں پہ غور کیا۔ لیکن جب ہم نے مرکز کی انجیل میں سے اس پیسج کو پڑھا تھا تو ہماری توجہ کا مرکز وہ 4 لوگ تھے جو چارپائی کو اٹھا کے لائے، اور ان کا طریقہ کار تھا جس پہ ہم نے غور کیا کہ کس طرح سے انہوں نے خداوند کی حضوری میں اس مفلوج شخص کو اتارا۔ لیکن آج جب ہم لوکا کی انجیل میں سے اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو آج میں آپ کی توجہ ایک اور اینگل، چند ایک اور نقطوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر غور کیجئے، بلکہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی واقعے کو سمجھنا ہے، اگر کسی واقعے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جائیے اور اپنی آنکھ سے اس سارے منظر، اس سارے نظارے کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر میں وہاں پر ہوتا اور میں سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتا تو یہ منظر دیکھنے میں مجھے کیسا لگتا؟ ہم نے اس پیسج کے اندر پڑھا
اور جب ہم اس پیسج کو مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ پھر کفرنہوم میں آیا. اگرچہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ تعلیم دے رہا تھا، لیکن مرکز ہم پہ یہ واضح کرتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ تعلیم دے رہا تھا اس جگہ کا نام کفرنہوم تھا. وہ وہاں پر ایک گھر میں تھا، اور یہ ممکن ہے کہ شاید وہ پطرس ہی کا گھر ہو جہاں پر خداوند یسوع مسیح، مطلب یہ ہم وثوق سے نہیں کہہ رہے، لیکن اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ پطرس رسول ہی کا گھر ہو جہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے سٹے کیا ہو، اور خداوند یسوع مسیح ایک دن وہاں پر تعلیم دے رہے تھے کہ بھیڑ لگ گئی. لیکن اس قدر بھیڑ کیوں لگ گئی؟ کیونکہ دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں آئے، اور جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ خداوند یسوع مسیح آ گئے، بھیڑ لگ گئی، کیونکہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یسوع مسیح کی پاپولیرٹی اس شہر میں پھیل چکی تھی. کیونکہ جب ہم مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں، اور پہلے جب خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں تھے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے عجیب کام ہوئے. خداوند یسوع مسیح کا کلام سن کے لوگ حیران تھے. لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، ارے یہ تو صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے. کہ خداوند یسوع مسیح کے واعظ میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا تھا. سبت کے دن جب ربی واعظ کیا کرتے تھے تو ربی اگر اپنے واعظ کے اندر کچھ کوٹ کرتے تو وہ باقاعدہ ریفرنس دیتے کہ فلاں ربی نے بھی یہ بات اس طرح سے کی ہے، فلاں نبی نے یہ بات اس طرح سے کی ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح واعظ کرتے تو خداوند یسوع مسیح کسی ربی کا کوئی ریفرنس نہیں دیتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے واعظ میں ہمیشہ اپنا ہی ریفرنس ہوتا. انہوں نے جب بھی کلام کیا تو یہ کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، اور لوگ حیران تھے کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے. اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے حکم دے کے بدرو گرفتار لوگوں کو آزاد کیا، لوگ حیران تھے کہ یہ اپنے ہی نام سے اپنے اختیار سے حکم دیتا ہے اور بدروہیں جو ہیں بدن کو چھوڑ دیتی ہے. لوگوں نے تعجب کیا، حیران کیا کہ اس کا طریقہ تعلیم، اس کا انداز دوسروں سے بالکل مختلف ہے. اور اب جب سیکنڈ ٹائم خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں آ گئے، شہر میں دھوم مچ گئی. جیسس از بیک، ارے یسوع آ گیا ہے. اور مرکز کی انجیل بتاتی کہ بھیڑ لگ گئی، اتنی بھیڑ لگ گئی کہ وہ گھر جہاں پہ خداوند یسوع مسیح تھے وہاں پہ جگہ باقی نہ رہی. لوگ باہر تک کھڑے رہے، دروازے میں بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. اور ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں، اس پیسج میں درج کہانی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے ایک مفلوج کو لے کے آئے. وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچنا چاہ رہے تھے لیکن بھیڑ کے سبب سے پہنچ نہیں پا رہے تھے. انہوں نے ایک آلٹرنیٹ وے کا انتخاب کیا، اور جس عزیز، جس دوست کو وہ کاندھوں پر اٹھا کے لائے، اسے خداوند کی حضوری میں اتارا، اور خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو وہاں اس جماعت میں موجود ہر فرد بشر نے دیکھا. لوکا کی انجیل میں درج اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عزیزو 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں، اور وہی 3 نقطے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ ویٹ، وزن، بوجھ. دوسرا پوائنٹ وال، دیوار جو کہ رکاوٹ تھی. اور تیسرا پوائنٹ وانڈر، معجزہ، عجیب کام جو لوگوں نے دیکھا. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ویٹ، وزن. آپ غور کیجئے گا اس سارے پیسج پہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایک مفلوج شخص کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور خداوند کی حضوری میں لے آئے. ہم جب مرکز کی انجیل میں پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ 4 لوگوں نے اس مفلوج کی 4 پائی کو اٹھایا. لیکن لوکا طبیب کی معرفت جب ہم پڑھتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ کئی لوگوں نے. مطلب جب مرکز لکھ رہا ہے تو مرکز کے کیمرے کا فوکس صرف ان 4 لوگوں پر ہے جنہوں نے 4 پائی اٹھائی تھی. لیکن جب لوکا لکھ رہا ہے تو لوکا کے کیمرے کا فوکس صرف ان 4 لوگوں پہ نہیں جنہوں نے 4 پائی اٹھائی تھی، بلکہ اس کے ساتھ آنے والے باقی کئی لوگ بھی تھے. یہاں پر یہ لوگ جنہوں نے اپنے کاندھوں پر اس بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے، یہ انٹرسیسرز کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ شخص جو کہ 4 پائی پہ ہے، مفلوج ہے، یہ خود سے اس لائق نہیں ہے کہ یہ خداوند کی حضوری میں آ سکے، لیکن پھر بھی he is a blessed person. یہ مبارک شخص ہے کیونکہ یہ ایسے لوگوں سے گھرا ہوا ہے جو اس کا بوجھ لے رہے ہیں، ارے جن کے دل میں اس کے لیے تکلیف ہے،
जो ये चाहते हैं कि ये शख्स शिफा पा जाए, ये अपनी बीमारी से भला चंगा हो जाए, उसके लिए खा कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इन्होंने उसको अपने कंधे पर उठाया और उसको मसीह यीशु तक ले आए। अरे ऐसे लोगों की आज भी जरूरत है कलीसियाओं में, मसीही खानदानों में, जो दूसरों का बोझ लेना जानते हो। अरे जो दूसरों के लिए बोझ के साथ खुदावंद की हुजूरी में झुकना जानते हो। क्रिश्चियनिटी नीड्स इंटरसेसर्स। अरे शिफात करने वाले, बोझ उठाने वाले लोग। ये शख्स शिफा पा गया, हालांकि खुद ये गुनाह में था, लेकिन इसको नजात मिल गई, शिफा मिल गई, गुनाहों से मखलसी मिल गई। खुदावंद का कलाम बताता है उनका ईमान देखकर, अरे वो जिन्होंने बोझ को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, उनका ईमान देखकर खुदावंद ने इसको मखलसी दे दी, रिहाई दे दी। दे आर द इंटरसेसर्स, जो बड़े ईमान के साथ, बोझ के साथ खुदावंद की हुजूरी तक पहुंचे। ये शख्स, ये मफलूज था, कमजोर था, और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि इसकी ये हालत गुनाह के सबब से थी। गुनाह पैरालाइज कर देता है, गुनाह मफलूज कर देता है। अपने इस हालत की वजह से ये खुद से खुदावंद की हुजूरी में नहीं आ सकता था, इसे लोग लेकर आए। मैं कहता ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन कि ऐसी हालत में जब ये खुद खुदावंद तक नहीं आ सकता था, इसकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद थे कि वो इसको खुदावंद तक लेके आए। हालेलुया। गुनाह का एक्ट ही ऐसा है, जब इंसान गुनाह में होता है, रूहानी महफिलों से, खुदावंद के लोगों से वो कतराता है, वो दूर भागता है, क्योंकि गुनाह इंसान को बांध देता है। अरे वो पैरालाइज कर देता है। ये खुद से खुदावंद की हुजूरी में आने के लायक नहीं था, लेकिन अगर इसको नजात मिल गई, अगर इसको मखलसी मिल गई, रिहाई मिल गई, तो उसका सबब वो लोग थे जो बड़े ईमान के साथ, बड़े बोझ के साथ उसे खुदावंद की हुजूरी में लेके आए। You are a blessed person. I am a blessed person. अरे क्योंकि मेरा माजी भी कुछ ऐसा ही था, गुनाह ने कल कहीं मुझे भी पैरालाइज कर रखा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद से यीशु की हुजूरी में नहीं आ सकता था, क्योंकि गुनाह ने मुझे पूरे तौर से पैरालाइज कर रखा था। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि जब मैं गुनाह के सबब से पैरालाइज था, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों को कायम रखा जो मुझे खुदावंद की हुजूरी में उठाकर लाने वाले थे। अरे जिनके बोझ के वसीला से, जिनकी दुआओं के वसीला से मुझे मखलसी मिली, मेरी मुलाकात मसीह यीशु से हो गई। हालेलुया। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो अपने दिल में आपकी रूहानी तरक्की का, आपकी मखलसी का, आपकी नजात का बोझ रखते हैं, दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ इंटरसेसर्स। ये शख्स अगरचे गुनाह में था, मफलूज था, मगर ये ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो बोझ लेने वाले थे, अरे जो शिफात करने वाले थे, जो इसके दर्द को अपना दर्द समझते थे। अच्छा, दूसरी बात ये, बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि ये लोग कितना सफर तय करके आए। वी डोंट नो इन्होंने कितना सफर तय किया। हाँ, लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि 4 लोगों ने 4 पाई पे उठाया हुआ था। दैट मीन्स कि ये शख्स सिर्फ बीमार नहीं था, बल्कि हैवी भी था। इसका वेट था, इसका वजन था। और लूका तभी लिखता है कि कई आदमी इस मफलूज को खुदावंद की हुजूरी में लेके आए। तो आप इसको पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए। यह मुमकिन है कि ये लंबा सफर तय करके आए, क्योंकि कई आदमी इस मफलूज को लेके आ रहे हैं और ये बारी बारी अपने कंधे एक्सचेंज करते होंगे। बारी बारी रास्ते में ये आगे पीछे एक दूसरे को मौका देते होंगे इसकी 4 पाई उठाने का, और ये खुदावंद की हुजूरी में पहुंचे। ये शख्स सिर्फ मफलूज नहीं था, ही वॉज हैवी। ये वजन भी रखता था, इसका वेट भी था। उनके कंधों पे इस शख्स का बोझ था। इस शख्स से उन्हें कोई मुफाद नहीं था, कोई फायदा नहीं था। ये महज उनके कंधे पे एक बोझ था।
लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदावंद का कि उन्होंने इसको एज ए बोझ नहीं लिया। इन्होंने इसको अपने कंधे पे महज एक बोझ नहीं लिया, बल्कि इस शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझा। अगर ये इसको अपना बोझ समझते तो शायद कभी भी खुदावंद की हुजूरी में पहुंच ना पाते, रास्ते में ही इनका इरादा दम तोड़ देता। लेकिन उन्होंने इस मफलूज को अपने कंधे पे महज एक बोझ नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, और चूंकि इन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा, खुदावंद ने भी इनको जोर बख्शा। जिस इरादे से ये घर से निकले वो इरादा अपने तकमील को पहुंचा। खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर हो गया। हालेलुया। अरे गौर कीजिए इन लोगों पे। दिस इज द मैसेज फॉर यू, मेरे लिए और आपके लिए आज यही पैगाम है। यह मुमकिन है कि शायद आपके कंधों पर भी अपने किसी अजीज, अपने किसी दोस्त, अपने किसी भाई, अपना किसी बहन का ऐसे ही बोझ हो जिसे आप बोझ महसूस करते हो। शायद हालात के सबब से अब वो कुछ करने की हालत में ना हो, लेकिन याद रखिएगा कि आपके कंधों पर ये बोझ नहीं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे वो लोग जो कमाल दलेरी से अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, वो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगियों में देखते हैं। हालेलुया। खुदावंद जिन कांधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, खुदावंद उन कांधों को मजबूती भी अता करता है। पहली बात थी वेट। इन्होंने इसको एज ए वेट नहीं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ये हमारे कांधों पे बोझ नहीं, जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमें खुदावंद ने दी है। ऐसे इंटरसेसर्स चाहिए, बोझ को लेने वाले, दर्द को लेने वाले। अरे अपने कांधों पे अपने लोगों का बोझ लेने वाले, वो जो रूहानी तौर पे बीमार है उनका बोझ, वो जो जिस्मानी तौर पे कमजोर है उनका बोझ लेकर वो जो खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखते हैं। हालेलुया। पहली बात थी वेट। दूसरी बात वॉल। खुदावंद का कलाम बताता है कि ये लोग उस मफलूज को अपने कांधों पर उठा के ले आगे भीड़ लगी है। खुदावंद का कलाम चल रहा है, लोग खुदावंद का मैसेज सुन रहे हैं। खुदावंद है, खुदावंद की हुजूरी भी है, खुदावंद के लोग भी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों ने देखा कि उनके कांधों पे एक मफलूज हो ना मंजी चुकी है, और उस चारपाई के ऊपर बीमार है, मफलूज शख्स है। उसके बावजूद लोग उसको आगे नहीं आने दे रहे। भैया ना केड़ा अंदर जाके सेल्फियां खिंचानियां ने। अरे पेशेंट है, पेशेंट को खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद के कदमों तक लाना है। मौका दिया जाए, रास्ता दिया जाए, आगे बढ़ने का चांस दिया जाए। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है किसी ने आगे नहीं आने देता। अरे किसी ने मौका नहीं दिया, इनको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिला। दिस इज द सेल्फिश स्पिरिट। अरे जब किसी को मौका ना दिया जाए तो समझिए कि वहां पर खुदगर्जी की रूह काम कर रही है। दिस इज द सैड पिक्चर ऑफ चर्च। इसका मतलब ये कि ये मुमकिन है कि खुदावंद की हुजूरी भी हो, खुदावंद का घर भी हो, और ऐसे लोग भी हो जो गीत गाते हैं, हालेलुया के नारे मारते हुए नजर आते हो, लेकिन एक तरफ अपने अंदर खुदगर्जी की रूह भी रखते हो। दिस इज द सैड पिक्चर ऑफ चर्च। दूसरी बात ये लोग उस मफलूज को यीशु तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट ये लोग थे जो खुदावंद की हुजूरी में खड़े थे, कलाम सुन रहे हैं। खुदावंद भी मौजूद है, खुदावंद का कलाम भी मौजूद है, खुदावंद के लोग भी मौजूद है, लेकिन यही लोग कुछ लोगों की जिंदगी में रुकावट का सबब है। इसका मतलब ये कि यह मुमकिन है कि चर्च में, खुदावंद की हुजूरी में रूहानी नजर आने वाले लोग अपनी लाइफ में कहीं किसी की राह में रुकावट का सबब भी हो। अरे कहीं किसी के कामों में रुकावट का सबब भी हो। दिस इज द सैड पिक्चर ऑफ चर्च कि एक तरफ खुदावंद का कलाम बड़े गौर से सुनने वाले लोग अपनी लाइफ में कहीं किसी के लिए रुकावट का सबब हो। दूसरी बात आप देखिए, ना वो लोग अपनी जगह से हिल रहे हैं और ना इनको हिलने दे रहे हैं।
ना वो लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं और ना इनको आगे बढ़ने दे रहे हैं। याद रखिएगा कि आज भी बथेरे लोग ऐसे हैं कलीसियाओं में, चर्चेस में, मिनिस्ट्रीज में, ना खुद रूहानी तौर पे आगे बढ़ते हैं और ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि ये लोग मायूस और ना उम्मीद होकर वापस नहीं लौटे, बल्कि इन्होंने ऑल्टरनेट वे का इंतखाब किया, इन्होंने एक दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। वहां पर खड़े लोगों ने यीशु का तजर्बा किया, लेकिन इन लोगों ने भी यीशु का तजर्बा एक और तरह से किया। इन्होंने डिफरेंट वे में यीशु का एक्सपीरियंस किया। और याद रखिएगा कि हर वो शख्स जो यीशु का तलबगार है वो मसीह का तजर्बा करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरा और आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सेम हो। यह मुमकिन है कि कहीं कोई शख्स चर्च गोइंग हो और एक दिन चर्च आते आते खुदावंद का रूह उसके दिल को छुए, वो नजात पा जाए, यीशु मसीह का तजर्बा हासिल करे। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ शायद ऐसे भी लोग हों जो किसी ट्रेजेडी में से गुजर के, या अपने किसी अजीज के छिन जाने से, या अपने किसी अजीज को बीमारी में देख के खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और मसीह का तजर्बा हासिल कर लेते हैं। अरे हर वो शख्स जो यीशु का तलबगार है वो यीशु का दीदार हासिल करता है, मसीह का तजर्बा हासिल करता है, लेकिन हर एक शख्स का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अरे वहां पर लोगों ने यीशु का तजर्बा किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डिफरेंट वे में यीशु का एक्सपीरियंस किया। उन्होंने ऑल्टरनेट वे का इंतखाब किया, छत खोल दी और यीशु का दीदार किया। और गौरतलब बात यह है कि यीशु ने माइंड नहीं किया, बट जीसस वॉज वेरी हैप्पी। खुदावंत का कलाम ये बताता है कि उसने उनका ईमान देख के, उनकी कोशिश, उनकी एफर्ट देख के, उनके कांधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के उस शख्स के गुनाह को माफ कर दिया। आज ये मफलूज अगर खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में है तो उसका सबब वो लोग हैं जिन्होंने अपने कांधे पे इसकी जिम्मेदारी को महसूस किया और उसे मसीह के पास ले आए। हालेलुया। अजीजों, याद रखिएगा कि अगर आज आप और मैं खुदावंद की हुजूरी का मजा चखते हैं तो इसकी वजह, इसका सबब ये नहीं कि आपका दिल बहुत अच्छा है या मैं बहुत अच्छा हूं, बल्कि इसका सबब वो लोग हैं जो आपके और मेरे पीछे रोते हैं खुदावंद की हुजूरी में, मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करते, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ और ईमान के साथ। कि खुदावंद का कलाम बताता है कि इंटरसेसर्स, शिफात करने वाले लोग, खुदावंद ने उनका ईमान देखकर इसको छुआ और इसको शिफा बख्शी। हालेलुया। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, ये लोग मसीह में बढ़ना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते में वॉल थी, रुकावट थी। और ये रुकावट इब्लीस की तरफ से नहीं थी, बल्कि ये रुकावट तो खुद खुदावंद के लोगों की तरफ से थी। इसका मतलब कि बाज मामलात, बाज कामों में रुकावट शैतान की तरफ से नहीं, बल्कि खुदावंद के लोगों की तरफ से ही होती है। खुदावंद के लोग ही बाज दफा रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। पहली बात वेट, दूसरी बात वॉल, और तीसरी और आखिरी बात वॉन्डर। आप गौर कीजिए इन आयात के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। दिस इज द 20th वर्स। खुदावंद ने उनका ईमान देख के कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन उसके बाद खुदावंद का कलाम बताता है कि वहां पर बैठे फकीह फरीसी जिन्होंने इस बात पे एतराज किया, उनका सवाल ये, उन्होंने अपने दिल में इस बात पे एतराज किया कि ये कौन है, ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। ये बात उन्होंने अपने दिल में की। खुदावंद का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने उनके दिल के ख्याल जानकर उनके सवाल को और ज्यादा क्रिटिकल कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। देखा जाए तो फकीयों फरीसियों के लिए, इंसानों के लिए ये दोनों काम मुश्किल थे। ना तो वो गुनाह माफ कर सकते थे और ना वो पूरे कमांड के साथ, पूरे इख्तियार के साथ ये कह सकते थे कि उठ और चल फिर। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये दोनों ही काम आसान थे, बिकॉज़ जीसस इज गॉड। खुदावंद के लिए दोनों काम आसान थे। लेकिन गौर करने की बात यह है, उन्होंने अपने दिल में यह सवाल किया कि हु इज ही, ये कौन है, ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। खुदावंद यीशु मसीह ने इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया,
बल्कि उल्टा खुदावंद यीशु मसीह ने उनके इस क्वेश्चन को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, और ज्यादा क्रिटिकल कर दिया कि अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, व्हाट इज द इजीएस्ट वे, आसान क्या है। और ये बात करके खुदावंद यीशु मसीह 25वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस नौजवान को उन्होंने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। खुदावंद यीशु मसीह ने तनकीद करने वालों के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह करना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह ने वो किया। हालेलुया, दिस इज द मैसेज फॉर यू। अरे वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते, वो लोग जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, या वो लोग जो हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं, अरे उनको सेटिस्फाई करने के लिए दलीलें देने में वक्त का ज़िया मत कीजिए। अरे आपको वो करना है जो खुदावंद ने आपको कहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे अपने आप को सही और सच्चा प्रूफ करने में वक्त का ज़िया मत कीजिए। लुक एट योरसेल्फ। अरे आपकी जिंदगी में खुदावंद ने क्या कलाम किया, आपके ज़िम्मे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो कीजिए जो खुदावंद ने आपको करने को कहा है। क्योंकि वो लोग जो तनकीद करते हैं, आप कुछ करो या ना करो, दोनों सूरतों में वो तनकीद ही करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि अपने आप को सही प्रूव करने से बेहतर है कि वो काम किया जाए जो काम खुदावंद ने आपके ज़िम्मे लगाया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं जाना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम किया जो काम उसके आसमानी बाप ने उसके ज़िम्मे लगाया था। अच्छा, एक और नुक्ते पे गौर कीजिए। 20वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने इस नौजवान को कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि 25वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने इस नौजवान से कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मतलब 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक ये नौजवान अपनी चारपाई पे लेटा रहा। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो 20वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह माफ कर दिए, लेकिन ये नौजवान उस वक्त चारपाई से नहीं उठा, बल्कि ये लेटा रहा। क्योंकि 20 आयत से लेकर 24 आयत तक फकीहों फरीसियों के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी और ये नौजवान लेटा सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। लेकिन फिर 25वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, उस वक्त ये नौजवान उठा। लेकिन ये 20वीं आयत में जब गुनाह माफ हुए, ये तब क्यों नहीं उठा? लुक एट द पैसेज, आयत पर गौर कीजिए। क्योंकि 20वीं आयत में अभी तनकीद शुरू नहीं थी हुई। जैसे ही तनकीद शुरू हुई, खुदावंद ने इस नौजवान को उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। अरे बिल्कुल ऐसे ही आपकी और मेरी जिंदगी में भी अरे बथेरे लोग हैं जो शायद हकीर जानते हो, कमतर तस्वर करते हो, कमजोर जानते हो, मगर याद रखिएगा कि जब जब जिंदगी में क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़े, ऑपोजिशन को फेस करना पड़े, अरे अपने आप को कमजोर मत कीजिए, अपने आप को मायूस मत होने दीजिए। क्योंकि समझ आइए कि जब जब तनकीद या ऑपोजिशन सामने आए, दैट इज द टाइम कि जब खुदावंद अपने बेटे बेटियों को सरफराजी बख्शना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप इस पैसेज पे गौर कीजिएगा। खुदावंद ने ऑपोजिशन से छुपा के नहीं उठाया, बल्कि खुदावंद ने ऑपोजिशन के सामने, तनकीद करने वालों के सामने इस नौजवान को उठाया। हालेलुया। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, यह शख्स लोगों के सामने अपनी चारपाई उठाता है और चला जाता है। यह मेन डोर से एंटर नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों ने एंटर होने नहीं दिया था। ये ऊपर से छत खोल के नीचे उतरा था। इसके दोस्तों, इसके अजीजों ने, या वो जो लोग भी थे, उन्होंने इसको उतारा था। लेकिन अब जब ये शिफा पा गया, अब जब खुदावंद ने इसको ब्लेस कर दिया, अब ये छत वाली साइड से नहीं गया, बल्कि अब ये मेन डोर से चल के गया और लोगों ने इसका रास्ता छोड़ा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जब ये कमजोर था, लाचार था, और जब ये खुद से कुछ करने की हालत में नहीं था, लोग इसके रास्ते की रुकावट थे। कोई भी रास्ता हमवार नहीं था। अरे हर जगह पे बंद दरवाजे दिखाई देते थे। लेकिन जब खुदावंद ने इसको जोर बख्शा, अरे जब खुदावंद ने ब्लेस किया, सरफराजी दी, तो वो रास्ता जो बंद था, अब वही रास्ता हमवार दिखाई दे रहा है। अरे जिस रास्ते में लोगों ने पहले रुकावट बना रखी थी, खुदावंद ने सारी रुकावटें दूर कर दी। अरे जहां से ये आ नहीं सकता था,
अब वहीं से ये दलेरी से कदम बढ़ाता हुआ खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद करता हुआ लोगों के सामने से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोगों ने जब इसे देखा, ताज्जुब किया, वो हैरत ज़दा हो गए। इसकी जिंदगी दुनिया के सामने एक बेहतरीन नमूना, एक जबरदस्त गवाही बन के साबित हुई। हालेलुया। अरे ये दुनिया को लाचार और कमजोर सा नजर आने वाला अब खुदावंद का जबरदस्त गवाह बन के निकला है। ये पहले कमजोर था तो कोई और नहीं सी देंदा, देयर इज नो वे। अब जब खुदावंद ने ब्लेस कर दिया, बरकत बख्श दी, वहीं पे अब इसके लिए रास्ते भी हमवार हुए। वो लोग जो रुकावट का सबब थे, उन्हीं को खुदावंद ने रास्ते से हटाया और रास्ते को सीधा बना दिया। हालेलुया। ये जब गुनाह में था, ये लागर था, कमजोर था, खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने की हालत में नहीं था, ये पैरालाइज था। लेकिन अब जब खुदावंद ने इसको नजात दे दी, गुनाहों की मखलसी हो गई, अब ये खुदावंद की तारीफ और तमजीद करता हुआ दिखाई देता है। खुदावंद की तारीफ और तमजीद वो लोग करते हैं जिनके गुनाह माफ हो जाते हैं। यू आर फॉरगिवन, अरे तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। जिनके गुनाह माफ हो जाते हैं फिर वो खामोश नहीं रहते। लुक एट दिस पर्सन, अरे इसके गुनाह माफ हो गए, ये खुदावंद की तारीफ और तमजीद करता हुआ दिखाई देता है। यू आर फॉरगिवन, अरे आपके गुनाह माफ हो गए। खामोश मत रहिए, बल्कि खुदावंद की तारीफ कीजिए, खुदावंद की तमजीद कीजिए, जिसने आपके ऊपर और मेरे ऊपर ये फजल किया कि हमें नजात दी, हमें मुआफी दी, हमें मखलसी अता की। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं इस पल के लिए, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद, जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, कुव्वत और जोर अता कीजिए। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं इस मौका और इस पल के लिए। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद यीशु जी, बथेरे जो मफलूज हैं, जो कमजोर हैं, या जो गुनाह के सबब से जकड़े हुए हैं, मसीह यीशु के नाम से मखलसी पाए, रिहाई पाए, नजात पाए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।